Thank you, everyone. And our next talk, Abdul Basit Ajmal, he will be delivering talk on the SCADA networks, very close to the talk which I was discussing with the CFP panel as well, like the IT/OT detection and threat hunting with the deception in SCADA networks. So hand over to you, Abdul Basit. Yeah, thanks. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my presentation. So the topic of my presentation is regarding SCADA networks, how to do threat hunting using deception in SCADA networks. So this is actually a journal article, so I'm presenting it here. Let's start with my brief introduction regarding me, who I am. So currently I'm working as a cybersecurity analyst at Don Gamers and VMCSS. So I have done my master's in information security and my thesis domain was adversary emulation. So it was all funded by HEC. It was regarding how to bypass security, firewalls, antiviruses, EDRs. So I have also worked for 2 years at cybersecurity research lab at COMSATS Islamabad. So I have 3 journal publications and 1 conference publication. I've also worked on research, security research projects with HEC Pakistan and Alan Turing Research Lab UK. So here is the quick agenda of today's presentation. First, I will go through the brief introduction. Then I will come on to problems and threats associated with SCADA. After that, I will briefly investigate how threat hunting can be done with deception in SCADA networks. Next, come on to some experimentations that we have already done, some results, and after that, we will conclude the presentation. So here's the introduction. So SCADA network. So SCADA network consists of PLCs. PLCs get data from sensors, actuators, and they just forward the data to remote terminal units, and they just connect through the master terminal units, and they just get sent data to historians and HMIs. So इसको अगर जब डिटेल में देखें तो यहाँ पे जो मेन एक्चुअल पॉइंट है वो है HMI, जहाँ पे तमाम PLCs को इट्स लाइक एन कंट्रोल पैनल, जहाँ से हम तमाम PLCs को उनका जो डाटा आ रहा है वो देख रही हैं, उनको ऑन कर सकती हैं, ऑफ कर सकती हैं, या तो वो सेंसर्स हो सकते हैं, कोई बॉयलर्स पे सेंसर्स, टेम्परेचर, थर्मल, व्हाटएवर, कोई भी चीज जो सारा वो HMI पे यहाँ पे चीज आ रही है। हिस्टोरियन जो है वो सारा उसका कीप रिकॉर्ड रख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेन चीजें जो है वो एक HMI है। अब यहाँ पे जो मेन वल्नरेबल चीज है वो है हमारा HMI। जो मेजोरिटी ऑफ द अटैक्स हैं वो टारगेट करते हैं HMI को, और थ्रू HMI वो PLC तक जाते हैं और इनको टारगेट करते हैं। रिसेंट अगर पास में देखें तो बिगेस्ट हॉक्स वाज स्टक्सनेट, जो लेटर ऑन 2016 और उसके बाद भी वो अपीयर होता रहा। उसमें मेन उसने थ्रू HMI उसने एक्सेस ली PLCs को, और PLCs को सेंट्रीफ्यूजेस के उसने राउंड्स पर सेकंड्स को मॉडिफाई किया और इस तरह उसने टारगेट किया। So, ये कुछ SCADA के थ्रेट्स हैं। अब इसमें मेन इशू जो ये है, लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइसेस, लाइक वी हैव डिफरेंट PLCs, वो सब RTU से कनेक्ट हो रहे हैं, RTUs M2U से कनेक्ट हो रहे हैं। अब डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे, ओवर द ये वैन भी हो सकता है, ओवर लोकल नेटवर्क भी हो सकता है। सो इसको सिक्योर करना एक चैलेंजिंग चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर राइट नाउ जो करंट सिक्योरिटी टूल्स हैं, दे आर रिएक्टिव इन नेचर and which causes delay in threat detection. For example, antiviruses, firewalls, they are working on specific gateway, looking for some specific malicious instincts, signatures, and strings. अगर तो वो डिटेक्ट होंगे तो एंटीवायरस रिएक्ट करेगा, फायरवॉल रिएक्ट करेगी। अगर वो डिटेक्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अभी इसमें कुछ मजीद एडवांसमेंट है, फॉर एग्जांपल EDRs हैं, XDRs हैं। Still they are causing delay in threat detection because they have a limited scope. Eventually this is causing increase in dwell time. जब तक थ्रेट डिटेक्ट ही नहीं होगा, उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा। इवन अगर वो डिटेक्ट हो भी जाता है, इवन लेटर स्टेजेस में, स्टिल इट विल कॉज डैमेज। और ये जो टाइम है, ड्यूल टाइम बिटवीन डिटेक्शन एंड बिटवीन रिस्पॉन्स, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे। सो देयर आर 2 different approaches, like proactive approaches. First one is threat hunting and second one is cyber deception. So these both things are closely related because these both are proactive approaches. In threat hunting, we are proactively looking for threats that are lurking inside our network stealthily. In cyber deception, we have a same goal, to learn adversarial techniques,
together IOCs, together the toolings that adversary is using. So these both things are closely related. So we came up with an approach. Why not to use both together to prevent the attack, to disrupt the attack, to record the attacker's activities, to record TTPs, together IOCs. So in below table, there are some of the threats regarding SCADA, the tools that can be used, and some mitigations like mass scanning, banner grabbing, like Shodan. On Shodan, there are a lot of Modbus coils exposed to internet, like Modbus register coils, modify, process, and command injection. So these are just very few threats. There are a lot of threats besides this. So let's look at some of the main problems associated with SCADA. So typically network have different layers of defense, such as at the network level, they use IDS, and at endpoints, they use EDRs for advanced threat detection and prevention, and all logs are fed to SIEM. सो इस तरह के एक सिनेरियो में हमने एक अटैक लॉन्च किया, एक रेड टीम यूजिंग, हमने उसमें कोबाल्ट स्ट्राइक, मेटास्प्लॉइट और डिफरेंट ओपन सोर्स टूल्स लाइक कोवेनेंट ये सब यूज किए, जिसमें वी वर एबल टू बाईपास ईडीआरस, ऑल सॉर्ट ऑफ आईडीएस एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इन दैट केस अटैक को डिटेक्ट करने में, लाइक अटैक डिटेक्ट हुआ काफी देर बाद जाके, और मीनवाइल हम सब डाटा फेच कर चुके थे ऑलरेडी, लाइक एक्सफिल्ट्रेशन हो चुकी थी. सो ये जो ड्यूल टाइम है अटैक को डिटेक्ट करने का और उसको रिस्पॉन्ड करने का, इट शुड बी मिनिमाइज. So we came up with a solution. In our approach, we have focused on early threat detection as well as engaging attackers in SD and decoy form, isolate attacker from the actual network, where threat hunters can learn TTPs effectively by collecting IOCs. So actually ये decoy form की term का क्या मतलब है? So actually ये एक SDN based decoy form है जहाँ पे set of decoys मौजूद हैं SCADA के, राइट. कुछ मॉडबस के कॉइल्स भी अवेलेबल इसमें मौजूद हैं, डीएनपी सर्वर, एसएमटीपी सर्वर. उसके अलावा यहाँ पे कॉनपॉट एक हनी पॉट है जो कि एक ओपन सोर्स हनी पॉट है, वो यहाँ पे डिप्लॉयड है. गैस पॉट डिप्लॉयड है यहाँ पर. उसके अलावा डिफरेंट डॉकर्स हैं, उनको आगे स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं क्या डिकॉय फॉर्म का क्या मतलब है. So the main idea behind the approach is to build a simulated SCADA network, which can be used as a target environment to divert and record attacker activities in an isolated environment. Moreover, integrating cyber deception, kill chain, and threat hunting in decoy networks. So what are the objectives of this approach? The first objective is to keep the attacker engaged and delay malicious activities. सो एग्जैक्टली राइट ना हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं कि अटैकर को हम डिले करें कि फर्दर अपने नेक्स्ट फेज में जाने से पहले उसको मैक्सिमम टाइम हम बाय कर सकें, उसको एंगेज रखें टुवर्ड्स डिकॉयज. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड अटैकर एक्टिविटीज एंड लर्न न्यू टेक्निक्स. सो ये वो फेज है जो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि राइट ना हमने जस्ट अटैकर को एक दफा डिटेक्ट करके रोकना नहीं है, हमने अपने डाटाबेस को एनरिच भी करना है न्यू टेक्निक से कि अटैकर की न्यू टेक्निक से अटैक कर रहा है. Third objective is to prevent attack, keep attacker isolated in a simulated environment. So right now these are the three main objectives of this approach. So exactly इसमें हो क्या रहा है, हम अब right now ये एक फैक्ट है कि हम ये नहीं कह सकते कि अटैक नहीं होगा या अटैक को हम 100% रोक सकते हैं. अटैक जो है वो वन वे अदर वे अटैक लाजमी आएगा. अटैक आने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सेम टाइम अटैकर्स को हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू लर्न भी करना है कि अटैकर्स क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं और क्या टूलिंग यूज कर रहे हैं. So these are the tools that we have used. First one is Mininet. This is an SDN, Open Virtual Switch. एक स्विच है. उसके बाद रियू कंट्रोलर है जो यूज कर रहे हैं ओवरऑल नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक को. सेकंड वन इज डॉकर. डिफरेंट हमने डॉकर्स बिल्ड किए और ईच डॉकर जो है वो एक स्काडा नेटवर्क को सिमुलेट कर रहा है. इस डॉकर के अंदर एक कॉन पॉट हनी पॉट है जिसको हमने खुद से मॉडिफाई किया, उसके सिग्नेचर्स को चेंज किया. सेकंड वन इज कुकू. थर्ड वन इज कुकू बॉक्स फॉर malware analysis. Fourth one is Zeek. It's a very amazing tool, Zeek Bro, to analyze the traffic. Maltrail to find the malicious trails in the traffic. Canary token, ये एक lure है. It can be in a form of word file, PDF. It can be anything.
Conport. This is the main honeypot that we are using in our approach. So Conport से हम different किस्म के PLCs को simulate कर सकते हैं. Last one is Honeybee and Nova. ये सब Windows system को emulate करने के लिए हम यहाँ पे use कर रहे हैं. So these are the some key elements of our approach. First one is threat hunt model. So the Sense is the first one who introduced the threat hunting model. Second one is kill chain analysis. Like here, we will see in coming slides about this. SCADA simulation and attack simulation. So actually, ये एक article है जिसमें कुछ researchers ने इसको डिटेल में explain किया कि SCADA को हम किस तरह simulate कर सकते हैं. So exactly we are using the same method to simulate the SCADA in software-defined network. Software-defined network and decoys. So in software-defined network, exactly what we are doing, we have different decoys connected using the open virtual switch, and all traffic is controlled by RU controller. Last one is attack analysis. So here we are using intrusion analysis like diamond model for attack analysis. So different approaches we are using in attack analysis. So यहाँ पर हम clearly अभी देख सकते हैं kill chain और डिसेप्शन का जो क्लोजली रिलेटेड क्या रिलेशन है, ये पिक्चर उसको क्लियरली विजिबल करे. लाइक फर्स्ट वन इट्स रिकॉन. अब रिकॉन में अटैकर स्कैन कर रहा है, उसको जो हम क्या दिखा रहे हैं, लाई एंड शो मेकअप नेटवर्क. इन दैट केस वी हैव यूज्ड मेकअप स्काडा नेटवर्क इन एसडीएन. इन वेपनाइजेशन वी कैन मिसडायरेक्ट coupling of exploits, backdoors in payload delivery. Here we can divert the adversary to our simulated network. So ये closely related deception और kill chain को आपस में मेन कर रही है कि each phase पे किस तरह deception attacker को tackle करेगी यहाँ पे. अब ये जो स्लाइड है, यहाँ पे XML फाइल एक सामने ओपन है जो Modbus के कॉनपोर्ट के क्लाइंट की है. अब इस Modbus क्लाइंट में हम मैन्युअली फॉर एग्जांपल अपने कॉनपोर्ट के जो पीएलसीज हैं उनको यहाँ पे बता सकते हैं, Modbus के क्लाइंट्स के कॉइल्स के नेम, रजिस्टर्स का साइज, वो सब यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं ये चीज से. तो इसको हमने यहाँ से मॉडिफाई किया है. और स्काडा जो पीएलसीज हमने सिमुलेट की हैं, ये उसका एक स्कैन रिजल्ट है. जो पीएलसी स्कैन एक ओपन सोर्स टूल है, उसके थ्रू स्कैन करने के बाद जो पीएलसी को स्कैन कुछ इस तरह का रिजल्ट शो होगा. इवन अगर अटैकर उसको स्कैन करते तो somehow ये आउटपुट अटैकर को शो होगा. अच्छा, अब इसको यहाँ पे मॉडिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अटैकर आता है और वो इस चीज को देखता है कि यहाँ पे कुछ वल्नरेबल डिवाइसेस हैं, तो उसको क्विकली पता चल जाएगा ये चीज कि ये हनी पॉट्स हो सकते हैं. सो अब हनी पॉट्स को हमने खुद से कुछ मॉडिफाई करना है कि वो डिटेक्ट ना हो, एटलीस्ट हम कुछ टाइम बाय कर सकें, उसको डिटेक्शन को डिले कर सकें. तो अभी राइट नाउ इनको हमने इसकी जो XML फाइल्स थी, जो इनके प्रोटोकॉल सिमुलेट हो रहे थे, उन सबको हमने मॉडिफाई किया यहाँ पर. ये जस्ट एक बेसिक फ्लो है थ्रेट हंटिंग का. माइट बी पॉसिबल सम व्यूअर्स हो जिनको इस चीज का आइडिया ना हो. सो फर्स्ट वन इज यहाँ पे हम हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस हमें पता चलता है कि मेलवेयर ने बाईपास किया सैंडबॉक्स को. अब हो सकता है कि ये उस चीज उसको डिटेक्ट ना कर सके. जस्ट हाइपोथेसिस है, हमने इस चीज को भी फाइनल नहीं किया कि जस्ट हमारी एक assumption है कि ऐसा हो सकता है. अब नेक्स्ट फेज में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे विया टूल्स एंड टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल हमने फाइंड किया कि कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर एक एम्बेडेड मेलवेयर था. ठीक है, अब इस चीज को हमने फाइंड कर लिया है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि वो पीडीएफ ने ही ये चीज को कॉज किया. अब नेक्स्ट फेज में हमें ये चीज कंफर्म हो चुकी है. यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आती है इस फेज में, जहाँ पे हमने इस हाइपोथेसिस को या तो वैलिडेट करेंगे या हम कहेंगे ये नहीं ठीक. नेक्स्ट फेज में हम अनकवर करेंगे न्यू टीटीपीज. यहाँ पे अब रिवर्स इंजीनियरिंग वाली चीजें शामिल आती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द बेसिक यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने फाइंड किया कि उसमें इनकोडेड हेडर्स थे, क्रॉस कंपाइल कंपैटिबिलिटी के साथ फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट पॉइंट्स पे पीडीएफ में मेलवेयर मौजूद था. अब लास्ट फेज में क्या होगा, एनरिचमेंट होगी. अब एक ये न्यू टेक्निक हमें पता चल चुकी है. ये जो फेज है ये यूजुअली इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम करती है इस चीज को, जो कि अपने न्यू थ्रेट डेफिनेशन और वो सब चीजें ऐड कर लेते हैं इसमें. इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ स्टिक्स और स्टिक्स टू लाइक एन एक्शनेबल इंटेलिजेंस. लाइक हमारे पास अब लॉग्स हैं, लॉग में से हमने आईओसीज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो इसका एक टूल है आरसी कैट के नाम से, ओपन सोर्स टूल है वो. अब वो जस्ट एक स्कैन करता है, टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है आईओसीज को. आईओसीज के अलावा स्टिक्स की फॉर्म में भी आपको आउटपुट दे सकता है. अब ये एक प्रोसेस फ्लो है इसमें. लाइक स्टेप वन में थ्रेट हंटिंग ओवरऑल किस तरह परफॉर्म की जा सकती है इस सेम सिनेरियो में. सो ये उसके 6 स्टेप्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं. डिफाइनिंग पर्पस ऑफ थ्रेट हंटिंग रूल्स, लाइक इस ये अभी
प्लानिंग वाली साइड पे भी है और इसको करने वाली परफॉर्म करने वाली साइड पे भी, एक्टिंग एंड प्लानिंग दोनों पैराडाइम इसमें कंसीडर किए गए हैं। अच्छा, ये अब हमारी ओवरऑल अप्रोच है कि किस तरह एसडीएन को यूज करके ये हम चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। राइट नाउ वी हैव थ्री नोड्स। फर्स्ट वन इज अटैक एंगेजमेंट नोड, second is need based decoy, and node 3 is orchestrating analysis. So जो मेन अटैकर अगर आता है तो अटैकर सबसे पहले नोड 1 के साथ डील करेगा। यहाँ पे उसको डिफरेंट किस्म के सीमेंस के पीएलसी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे उसे एचएमआई भी नजर आ रहा होगा और प्रॉपर एक उसे नेटवर्क नजर आ रहा होगा इसके अंदर। अब यहाँ पर वो जो भी एक्टिविटी करेगा उसके जो लॉग्स हैं वो नोड 3 की तरफ जा रहे होंगे। इसमें अभी जो एक राइट ना कुछ चीज है जो अभी हमने मैनुअली मैनेज किया है, हमने इसमें ये किया कि इवन इफ अगर अटैकर वहां पे एंगेज कर रहा है और वो फर्दर स्कैनिंग कर रहा है या कुछ पेलोड्स या एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिर फॉरवर्ड हम कर दें नोड 2 की तरफ। ये राइट नाउ चीज अभी मैनुअल है, फ्यूचर वर्क में इसको हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट नाउ जो भी अटैक कराएगा, इन केस अटैकर फर्दर स्कैनिंग करेगा उसे मजीद नेटवर्क शो होता रहेगा, मजीद न्यू नोड्स उसे शो होने लग जाएंगे। तो नोड 2 का काम जो है वो ये करेगा, ये मजीद डिकॉयज डिप्लॉय करता रहेगा यूजिंग नोवा। नोवा में एक जिस तरह एक पूरा प्रॉपर पैनल है, वहां पे हम न्यू विंडो सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, डिफरेंट आईपीस के साथ प्रॉपर पैनल है। तो नोड 1 जो है यहाँ पे ओवरऑल हम जितने भी अटैक्स हैं वो यहाँ पे एंगेज होंगे। नोड 2 पे इन केस अटैकर फर्दर पिवटिंग करने की ट्राई करता है तो वो सब चीजें नोड 2 में जाके एंगेज होंगी। नोड 3 जो है यहाँ पे हमारा सारा एनालिसिस हो रहा होगा, नेटवर्क ट्रैफिक भी, और उसके बाद जो लॉग्स हैं वो यहाँ पर हमारे थ्रेट हंटर्स होंगे, वो नोड 3 को इसके थ्रू सारी इस एनवायरनमेंट को देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये सारी चीज जो है ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। अच्छा, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए थे। लाइक फर्स्ट वन जो है एक स्टेक्सनेट जो है ये सीमेंस का S7 स्टेप 7 जिसको यूज करता है, उसको मेन इसने एक्सप्लॉइट किया था। सेम वही एनवायरनमेंट हमने इस एनवायरनमेंट में रखकर इसको रन किया था, तो ये इसने इसको डाइवर्ट भी किया था और न्यूट्रलाइज किया था। राइट साइड पे जो इसका एग्जीक्यूशन चार्ट है, अभी जो रेड नोड्स हैं ये वो नोड्स हैं जहाँ पे मतलब इसको हमने रन किया था और ये प्रोपोगेट नहीं हुआ यहाँ पर। सेकंड जो है ये ट्राई स्टेशन मेलवेयर, इसको भी हमने यहाँ पे ट्राई किया था, इसके सैंपल जो है वो गिटहब पर भी हैं। उसके अलावा हैटमैन मेलवेयर है। अब यूजुअली आईआईओटीज जो है वो हेडलेस एचटीटीपी सर्वर को यूज करें, उस पर भी डिफरेंट किस्म के अटैक्स हमने यहाँ से परफॉर्म किए हैं, एचएमआई बेस्ड अटैक्स, क्योंकि जस्ट एक वेब बेस्ड जितने अटैक्स हैं वो सब एचएमआई पे होते हैं। एचटीटीपी डॉस अटैक और सब हमने ट्राई किया और इट वाज एबल टू सक्सेसफुली डाइवर्ट ऑल दीज अटैक्स। अभी रिजल्ट्स में अगर आते हैं तो अब थ्रेट हंटर्स को यूजुअली उन्हें आर्टिफैक्ट से उन्हें लॉग्स कलेक्ट करनी है, इस तरह की डिफरेंट डिटेल्स करनी है। फॉर एग्जांपल आर्टिफैक्ट नेम है, लॉग्स हैं, एचटीटीपी लॉग्स, एफटीपी लॉग्स, मॉडबस सर्वर लॉग्स, इस तरह के डिफरेंट हमारे विंडोज सिस्टम पर भी ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जहां से लॉग्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। प्रॉक डंप है, एस डंप है, पीएसएक्स है। नेक्स्ट चीज जो है वो CMF और थ्रेट हंटर, ये भी एक कलेक्शन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो सैंस ने प्रेजेंट किया था। ये इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे कलेक्शंस हैं या जो भी हमने एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं वो सब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, किस पॉइंट से कब एक्ट किया, कौन सा सिस्टम था, किल चेन का कौन सा स्टेप था, तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। अब राइट साइड पे लाइक हमने इसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म किए थे, ऑल सॉर्ट ऑफ अटैक्स, लाइक आइडियाज को बाईपास करने के लिए जो भी अटैक्स हो सकते हैं, वेब बेस्ड अटैक्स हो सकते हैं, स्निफर्स हो सकती हैं, कॉइल्स को मॉडिफिकेशन हो सकती है, ऑल सॉर्ट ऑफ अटैक्स। ये सब अटैक्स परफॉर्म करने के बाद इस पे जब काउंटर एक्टिविटी परफॉर्म की गई है जो कि नोड 3 से कंडक्ट हुई है, उसके रिजल्ट्स में जो राइट हैंड पे टेबल शो रहा है डिस्कवर टेक्निक्स, ये वो सब टेक्निक्स हैं जो डिटेक्ट की हैं। फॉर एग्जांपल मॉडबस कॉइल मॉडिफिकेशन, कॉइल स्कैनिंग, इस तरह के एमसी बाईपास, रिवर्स शेल हो गया, प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेशन हो गया, पीएलसी टेक ओवर, मैनिपुलेशन, सेशन हाईजैकिंग। सो ये सब अटैक्स थे। इससे हमने किया कि एक्चुअल तो अटैक को हमने डाइवर्ट भी किया, डाइवर्ट करने के साथ साथ हमने उस अटैक में जो टेक्निक्स यूज हुई थी उनको भी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो टेबल शो रहा है ये ओवरऑल जो थ्रेट हंटिंग एक्टिविटी थी उसकी कुछ डिविजन हैं कि थ्रेट डिटेक्शन ओवरऑल जो टाइम था 9% जो है वो हमें थ्रेट डिटेक्शन पे लगा, हाइपोथेसिस को वैलिडेट और वेरीफाई करने में 21%, अनकवरिंग टीटीपी 42%, एनरिचमेंट एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स इसमें 28%।
अभी जो बार चार्ट है ये जस्ट फॉल्स पॉजिटिव्स को यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेडिशनल फायरवॉल्स को यूज करें या ट्रेडिशनल रिएक्टिव अप्रोचेस को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो उसमें ज्यादा होते हैं, और इसमें सिर्फ 10% के करीब रहे हैं, क्योंकि इन केस हाइपोथेसिस हमने सही तरह से उसको वैलिडेट ना किया और हम एक किस तरह की हाइपोथेसिस को लेके आगे चलें कि जो कि ट्रू ना हो, तो इन केस उसमें फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। इन केस अभी जो राइट में रडार है, ये जस्ट एक डिटेक्शन गैप यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेडिशनल इन केस करते हैं तो वो ज्यादा टाइम टेक करता है, और थ्रेट हंटिंग जो है अप्रोक्स 40-50% जो है उससे बेटर रिजल्ट्स हैं इसके। सो कंक्लूजन में, ड्यू टू चेंज ऑफ थ्रेट लैंडस्केप, रिएक्टिव अप्रोचेस आर इनइफेक्टिव इन डिटेक्टिंग एंड reacting in time, resulting in no detection or increasing dwell time between incident response and attack. Proactive approaches in conjunction with deception and threat intelligence are an effective way of detecting and preventing threats quickly, and using SCADA decoys form to engage in attack and record its activity by providing IOCs to threat hunters. तो इसमें लास्टली हमने कंक्लूड मतलब ये चीज की है कि रादर की अटैक तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट करने के साथ साथ अटैकर को एंगेज रखकर हम फर्दर अटैक को लर्न कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में किस तरह अटैक्स को फोर्सिंग कर सकते हैं, और या अटैकर्स की क्या टूलिंग है। तो ओवरऑल प्रोएक्टिव अप्रोच से किस तरह स्काडा में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शंस में इसमें फर्स्ट फ्यूचर डायरेक्शन है मोर रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। अभी यूजुअली ये डिकॉयज हैं, तो इनको हमने मजीद रियलिस्टिक इन सेंस बनाना है कि अटैकर जब तक इनके साथ एंगेज रहता है तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये एक डिकॉय के साथ एंगेज कर रहा है। सेकंड वन इज मोर स्केलेबल टेस्ट एनवायरनमेंट। राइट नाउ ये कुछ डॉकर्स का जो एक एनवायरनमेंट है, ये हम एक साइट पर डिप्लॉय इसको किया जा सकता है, इसको मजीद अब स्केलेबल इसमें किया जा सकता है। लास्ट वन इज ऑटोमेटिंग नोड्स क्रिएशन। जिस तरह अभी मैं नोड 2 पे बता रहा था कि नोड 1 पे अटैक आता है तो वो किस तरह नेक्स्ट नोड को खुद डिप्लॉय करेगा, तो ये चीज अभी राइट ना जो हमने पीओसी एक इस पे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो वो मैनुअल हमने वर्क किया था, तो इसको भी हम फ्यूचर डायरेक्शन में ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट यू मे आस्क। Thank you, Abdul Basit. I would say one thing. Very interesting talk. Or OT security, ICS security, SCADA security definitely is a topic where everyone is discussing. The reason is Colonial Pipeline, JBSB, Yes. and these are all the incidents. You just talk about that, and now you're listening about power sector attacks. Right. The last year one was in Pakistan as well, and globally happening as well. Threat hunting is definitely a good topic. लेकिन मेरा question ये है कि is there any like a better detection mechanism? Is there like a threat detection mechanism? Because traditionally हम क्या use कर रहे हैं, हम EDR tool use कर रहे हैं, हम antivirus tool use कर रहे हैं, हम IDS IPS use कर रहे हैं, but they are not like relating to ICS or OT environment because they don't have like that of signature. और sometimes एक challenge ये होता है कि OT environment में जो protocols use हो रहे हैं, definitely DNP3, Modbus, they are now Right. everyone is using that, but sometimes there are Schneider Electric, GE, they are using proprietary protocols where no one understands, what are the protocols, they can't decode them as well. So उस challenge को कैसे solve किया जाए जहां आपके पास decoders ही नहीं हो proprietary protocols को decode करने के लिए? So exactly, ये जो environment है इसका main focus जो है, एक तो divert करने के अलावा दूसरा जो मेन फोकस है वो थ्रेट इंटेलिजेंस को गैदर करना। क्योंकि इन केस जो एग्जैक्टली अभी आपने चीज बताई है कि प्रोटोकॉल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उस केस में ये चीज किस तरह डील करेगी, ये एक एक्चुअल अपना थ्रेट इंटेलिजेंस गैदर करने की एनवायरनमेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे डिसेप्शन को हमने ऐड किया, क्योंकि स्काडा में अब हेट्रोजेनिटी है, डिवाइसेस डिफरेंट हैं, तो दैट्स वाई ये एनवायरनमेंट को ये एक्चुअल रिसर्च एनवायरनमेंट के तौर पर भी काम करेगी। अटैकर्स यहाँ पे आएंगे, एंगेज होंगे, थ्रेट हंटर्स उनको लर्न करेंगे कि वो काम कैसे करेंगे, चीज किस तरह, तो ये खुद से एक अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस है। अभी दुनिया में डिफरेंट थ्रेट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब डिफरेंट थ्रेट इंटेल है। आपकी जो अपनी लोकल एक अपनी एनवायरनमेंट की थ्रेट इंटेल है ना, वो एक यूनिक होगी और वो एक्चुअल थ्रेट इंटेल होगी जो आपको बताएगी कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। सो दैट्स वाई डिसेप्शन को यहाँ पे हमने ऐड किया। बात आती है थ्रेट अटैक डिटेक्शन की, तो वहां पर रिव्यू कंट्रोलर में राइट नाउ हमने कुछ कन्फिग्स किए हैं एज अ पॉलिसिंग के क्या चीज नोन है, क्या चीज अननोन है, क्या मिलिशियस है, क्या नॉन मिलिशियस है। ये हमने एक मेट्रिक डिसाइड किया था जब इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था। तो जो चीजें हमने उसमें डिसाइड की थी कि ये मिलिशियस हैं,
वो चीजें जब भी हिट करेंगी उस कंट्रोलर को तो वो उनको एसडीएन में फॉरवर्ड कर देगा। राइट नाउ अभी हमने पीओसी के लिए ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि अगर आप प्रूडेंट रेफरेंस आर्किटेक्चर देखें, एंटरप्राइज रेफरेंस आर्किटेक्चर देखें, तो आप कहाँ पे देखते हैं कि वेयर यू विल हैव दैट द सॉल्यूशन और डिवाइसेस अप्लाइड, बिकॉज द लेवल 0 इज द फिजिकल एक्चुएटर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं, फिजिकल अप्लायंसेस हैं, व्हाइल यू गो टू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जहां पीएलसी एसएमएस आती हैं। वन ऑफ द चैलेंज, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करेंगे, the operator who are actually working in the plant side, they don't want you to install any equipment in their environment, चाहे वो पैसिव सेंसर्स हो या एक्टिव सेंसर्स। डेफिनेटली एक्टिव सेंसर्स तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, बट पैसिव सेंसर्स दे आर रिलक्टेंट टू इंस्टॉल एनीथिंग इन देयर लेगेसी सिस्टम। एग्जैक्टली। सो इसको हम जो इसकी डिप्लॉयमेंट है वो एक्चुअली में एचएमआई के पैरेलल में है। राइट नाउ इसकी रिव्यू कंट्रोलर में कुछ कॉन्फ़िग हमने इस तरह की है कि जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो यहाँ पे एक दफा अटैकर अगर आता है तो वो यहाँ से फर्दर मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इसी एक जो कंट्रोलर के अंदर ही रहेगा वो। और एचएमआई के पैरेलल में से हम लगा रहे हैं। एक्चुअल जो पीएलसीज हैं वहां पे हम इसको नहीं लगा रहे, दैट्स वाई कि उसको समहाउ उसको एक्सेस नहीं जानी चाहिए वहां तक, अगर अटैकर उसमें इन्फिल्ट्रेट कर भी लेते हैं। तो इसको एचएमआई के पैरेलल में लगा रहे हैं, एमटीयू से पीछे वाला जो लेवल बनता है वहां पे इसकी डिप्लॉयमेंट है। गॉट इट। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जितनी भी है, जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, दे आर वांट टू गो इनटू आईसीएस सिक्योरिटी, ओटी सिक्योरिटी, बिकॉज़ दैट इज अ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज इन द साइबर वर्ल्ड। क्या रिकमेंड करते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए ओटी सिक्योरिटी? ओटी सिक्योरिटी उनके लिए मेजर जो मैं रिकमेंड करूंगा, मतलब मैंने जिस तरह स्टार्ट किया था इस चीज को, तो स्टार्ट में कुछ मुझे आर्टिकल्स थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के कुछ स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट बेड्स उन्होंने बनाए थे स्काडा के। तो वहां से मैंने एक एमएस का थीसिस है जिनको मैंने वहां से स्टडी करना स्टार्ट किया। तो फिर टेस्ट बेड्स को मैंने उसकी सिमुलेशन को स्टडी किया, किस तरह सिमुलेट हो सकती हैं और इस तरह की सारी चीजें। अब राइट ना गूगल पे इसका एज एट गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। एकेडेमिया में अगर आप सर्च करते हैं तो इस पे काफी ब्रीफ और डिटेल्ड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर ए टू जेड डिटेल मिलेगी कि सिमुलेट किस तरह किया जा सकता है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट लेयर्स कहाँ कहाँ पर आती हैं, एमटीयूज किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो एकेडेमिया में ये आपको गूगल स्कॉलर पर ही इसकी जो मेजोरिटी आपको डिटेल्स हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहां से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित, एंड अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मेरे ख्याल में सबने एंजॉय किया होगा, जो हमारी कम्युनिटी जो वॉच कर रही है, जो डिस्कॉर्ड पे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर BSides इस्लामाबाद, एंड होपफुली वी विल सी यू नेक्स्ट ईयर एज वेल। You're welcome. Thank you so much.